Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. You know this is New Oxford Modern English book for grade 6 and this is the first unit, Mother to Son. We have done the reading of this unit in our previous lecture and we have done the summary plus half of the exercise. Today we are going to do the question answers of this unit, Mother to Son. Again I am going to recall it for you once. In this unit we have learned about the story of a mother, that how he faced a lot of difficulties in her life, and then she advises her son to follow on her footstep and don't look back. And despite all of the difficulties, she moved on, she continued to be climbing ahead. So she advises her son to don't fall down, don't look back, and follow on her footstep, because life will be not easy for him too. So these are the question answers. The first question is, who is speaking in the poem and to whom are the words addressed? कि कौन पोएम में बात कर रहा है, कौन एड्रेस कर रहा है और किससे कर रहा था. सो आई हैव रिटन दिस क्वेश्चंस फॉर यू. लुक, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ मदर इज स्पीकिंग इन द पोएम एंड हर वर्ड्स आर एड्रेस टू हर सन. वो अपने सन से, अपने बेटे से जो है ये सारी बातें कर रही है. व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हर लाइफ विद? द स्पीकर कंपेयर्स हर लाइफ टू अ फ्लाइट वन डाउन डिमी लिट स्टेयर्स. किससे स्पीकर कंपेयर करता है अपनी लाइफ को? मदर किससे कहती है कि फ्लाइट वन डाउन डिमी लिट स्टेयर, फटी पुरानी हंसता हाल टूटी फूटी बगैर लाइट के स्टेयर से, लाइक क्रिस्टल स्टेयर्स, जैसा हमने पोएम में पढ़ा कि हर लाइफ वाज नॉट लाइक अ क्रिस्टल स्टेयर्स. व्हाट डज द स्पीकर एनकाउंटर ऑन द स्टेयर्स? स्टेयर्स पे इसका किस एनकाउंटर होता है, किससे सामना होता है? द स्पीकर एनकाउंटर्स ट्रैक्स, स्प्लिंटर्स, होल्स एंड द पैचेस ऑफ डार्कनेस ऑन द स्टेयर्स. क्या क्या उसको नजर आता है, किससे क्या क्या देखना पड़ता है? ट्रैक्स, splinters, small pieces of woods, small flat head with the small piece of nail with the flat head, holes and the patches of darkness on the stairs. Even though there have been obstacles in the way, what has the speaker done to continue her journey? Despite all of the difficulties, all of the discomforts, all of the obstacles in her way, वो कैसे उसने अपना जर्नी जो है, अपना सफ़र जारी रखा? She has kept climbing up. आगे ही आगे बढ़ती रही. कौन? मदर. विथ 3 pieces ऑफ एडवाइस डज द स्पीकर गिव द बॉय. फिर उसने अपने बेटे को क्या एडवाइस की थी मदर ने? डोंट टर्न बैक, डोंट सिट डाउन एंड डोंट फॉल आर द 3 pieces ऑफ एडवाइस द मदर द स्पीकर गिव्स टू द लिसनर इन द पोएम. Next question is, which sentences are repeated in the poem? The line, lie for me and be no crystal stair, and I has been climbing on, I have been climbing on and I am still climbing, I am still climbing, ये lines जो थी बार बार repeat की गई थी. Which line is the shortest? Why do you think the poet made this line so short? The one word line bear is shortest. कौन सी line shortest है? Bare, uncovered, unclothed जो है वो क्या है? शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ द पोएम. द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, पोएट मेड दिस लाइन सो शॉर्ट, वाई डू यू थिंक? सो इस लाइन से पहले जो एक्सप्लेन किया गया था, यू हैव टू लुक योर बुक्स. द फर्स्ट पैराग्राफ, इट इज ट्रैक्स इन इट. It has tracks in its splinters, boards torn up and places with no carpet on the floor. He has explained that places with no carpet on the floor, bare, uncovered. Again, no carpet on the floor represents, अगर फ्लोर पे कार्पेट्स नहीं है दैट मीन्स वो अनकवर्ड है, बेयर, अनकवर्ड, अनक्लॉथ. ठीक है, तो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है इस चीज़ को कि नो कार्पेट ऑन द फ्लोर रिप्रेजेंट्स द डिसकम्फर्ट्स एंड द लेक ऑफ वेल्थ इन हर लाइफ. सो मे बी उसने इस वजह से ये लाइन जो है, ही मेड दिस लाइन सो शॉर्ट. What is the mother's experience of life? Life for the mother has been very difficult, but she has not given up. क्या experience था मदर का? कि ज़िंदगी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने give up नहीं किया. So the next question is, why do you think she is telling her son about her life in this way?
कि आपका क्या हाल है, वो अपने सन को क्यों अपनी लाइफ के बारे में बता रही है. सो यू हैव रीड द यूनिट, यू हैव टू आंसर इट बाय योर सेल्फ, योर ओन. आई एम गोइंग टू टेल यू, बिकॉज शी लव्स हर सन, वो अपने बेटे से मोहब्बत करती है, एंड शी वॉन्ट्स हिम टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ बाय फॉलोइंग हर फुट स्टेप्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड विदाउट टर्निंग बैक और गिविंग अप. वो उसको ये एडवाइस करना चाहती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, वो पीछे मुड़ के ना देखे, अपनी मदर के जो फुट स्टेप है उनको वो फॉलो करे. You have to open now your textbook page number 4. Part B is working with the words. Find all the non-standard form used in the poem. Write them along with the correct meaning and the form. Don't forget to list all the words with an apostrophe. Write these sentences using standard and grammatically correct English. I is expecting a friend for dinner, and we learned previously that I is mean I, non-formal way of saying I have, or it's a short form of contraction form of I am. So here we use I am expecting a friend for dinner. I have been waiting at this bus stop for 1 hour. I am not going to the cinema tonight. They have been kind of sleepy today. She stayed at home because she was ill. Short form of because. You are not doing this at all if you find it's too difficult to do now. It is if you find it is too difficult to do now. The next part is learning about language. Sentences. To put the thought into speech and writing, we use words. Words themselves are not enough to show clearly what the thought is about. For this, we need sentences. A sentence is complete thought put into words. The sentence can take different forms. These forms are statement, questions, commands, exclamations. सेंटेंसेस 4 तरह के हो सकते हैं. स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है, कोई ऑर्डर दिया जा सकता है, कमांड, एक्सप्लेनेशन, किसी भी फीलिंग का, खुशी का, जॉय का या सैडनेस का इजहार किया जा सकता है. टू कन्वे अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन वी यूज़ अ स्टेटमेंट. एग्जाम्पल, इफ चिल्ड्रन वर्क हार्ड दे विल ग्रो इनटू ब्राइट एडल्ट्स. एक सिंपल सी बात की गई है कि अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे, मतलब वो ज़हीन इंसान बनेंगे, वो बड़े होके ज़हीन बनेंगे. तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस. टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग वी यूज़ अ क्वेश्चन. किसी चीज़ के बारे में मालूम करना हो तो हम क्वेश्चन करते हैं. हैव यू फेड द एनिमल्स? क्या तुमने जानवरों को खाना दिया? टू टेल समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू इट वी यूज़ अ कमांड. कमांड हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं कि ये काम करना है या ये काम नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, डोंट वेस्ट योर टाइम. यहाँ हम कमांड दे रहे हैं कि अपना टाइम ज़ाया मत करो. टू शो एक्साइटमेंट वी यूज़ एन एक्सक्लेमेशन. एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज. एक खुशी का इजहार किया गया, एक्साइटमेंट का किया गया, तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है. ये इसके एंड पे जो ये साइन यूज़ किया गया है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी रिमार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. सो इनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, पिक आउट द स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशंस. द बोर्ड्स आर टर्न अप. एक सिंपल बात ये कि बोर्ड जो है वो टर्न अप थे, फटे पुराने थे, फटे हुए थे. तो दिस इज द टाइप ऑफ सेंटेंस वी कॉल इट स्टेटमेंट. डिड यू हेयर व्हाट आई सेड? अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, एंड एट द एंड ऑफ द इंटरॉक्टिव सेंटेंस वी यूज क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज कॉल्ड क्वेश्चन. टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज कॉल्ड क्वेश्चन. कीप इट सेफली इन अ ट्रंक. कमांड. अब एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि इसको ट्रंक में हिफाजत से रख दे. डी, हाउ फ्रेश इट इज़. हाउ फ्रेश इट इज़ एक्सक्लेमेशन. देखें इसमें अगेन एक जॉय का इजहार किया गया है, खुशी का, कि कितना फ्रेश है ये. इट विल चेंज कलर इन 2 hours. सिंपल सी बात की गई, 2 घंटे में इसका कलर चेंज हो जाएगा. सो स्टेटमेंट. थ्रो इट अवे. इसको फेंक दो, दूर फेंक दो. कमांड. आई बर्नट इट येस्टरडे. अगेन सिंपल सेंटेंस है कि इसको मैंने येस्टरडे से मैंने जला दिया था. स्टेटमेंट. हैव यू बर्नट इट येट? क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुमने इसे अभी तक नहीं जलाया या अभी तुमने इसे जलाया. क्वेश्चन. ई पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज मेक क्वेश्चन फ्रॉम द सेंटेंसेस बिलो. अब आपको ये सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं, इनसे हमने क्वेश्चन या इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू. क्वेश्चन क्या है? विल आई टेल यू. इट हैड टैक्स इन इट. हैड की जगह क्या आएगा? डिड इट. अब यहाँ पे हमने जो है पास्ट टेंस यूज़ कर लिया, हेल्पिंग वर्ब हमने डिड यूज़ किया है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हैड की जगह हैव लगेगा. डिड इट हैव टैक्स इन इट. देयर वर प्लेसेस
with no carpet on the floor. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये स्टार्ट में आ जाएगा सेंटेंस के. Were there no carpets on the floor? Were there places with no carpets on the floor? He sat down on the grass. Did he sit down on the grass? Did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. She finds it hard. ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है. दिस इज फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस. सो डज शी फाइंड इट हार्ड? आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड. जब इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ. आर यू स्टिल वर्किंग हार्ड? आर एम आई स्टिल वर्किंग हार्ड? सो दोनों टाइप में ये हो सकता है. The part D is listen and say these words aloud. Had, fed, made, man, pain, can, bad, made, fed, hate, fed, mate, man, pain, can, bad, made, fed. Be careful, look in a dictionary. So learn the poem you have read by heart, recite it aloud and try to say it better each time. Remember that it is being spoken by a mother to her son, and the mother wants to get across to the son that her life has been hard but wishes to encourage him to make something of his life. तो आप इस poem को again आप read करें, heart से read करें, दिल से लगा के इसको पढ़ें. आप इसमें देखें कि कैसे मदर जो है अपने son को advise करती है. So students, we have completed our unit number 1 today. You have to write the question answers of this unit on your notebook, and you have to learn this book work, and also you have to do this on your notebook. Thank you. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.